Good morning, class 4th. Class, this is English literature, and today we'll start chapter 16th, The Lighthouse. Class, this is a poem written by Marjorie Wilson. Okay, and in this chapter, you will learn about lighthouse. Lighthouse is like a tower or building which give us light. Okay, in the coastal area. Okay, जब कभी भी समुद्र में जो समुद्री एरिया जो होता है तो उसमें एक तरह से लाइट का काम ही करता है, ठीक ना। जो भी वहाँ पे शिप होते हैं, ओके, बोट्स होते हैं, तो उनको एक तरह से डायरेक्शन और लाइटिंग का काम इसकी हेल्प से होता है। ओके, सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द वर्क ऑफ द लाइट हाउस कीपर. Okay, in this chapter you will learn about the work or duty or responsibility and importance of the lighthouse keeper. Lighthouse keeper means जो लाइट हाउस की देखभाल करता है ना, वो उसको लाइट हाउस कीपर कहते हैं. ओके, सो दिस पोएम इज टेलिंग importance about lighthouse keeper. Next thing is learn to appreciate the work done by others for our safety. There are many persons in our country, in the world, that do many work for us, for our safety. Okay, like policeman, okay, army chief, okay, there are many army soldiers. Okay, there are many persons that give their life just for our safety. If they don't do their work, it will be problem for us. अगर वो लोग अपना काम ना करें तो हम लोग के लिए प्रॉब्लम. अगर हम लोग सेफ हैं, हम लोग हैप्पी हैं, just because of them. Okay, next thing is study present and past participles. In this chapter you will also learn about present and past participles tenses. Okay, so this is the short description of the poem. Have you ever seen a lighthouse? Here the writer is asking me that have you ever seen a lighthouse? क्या आपने कभी कोई लाइट हाउस देखा है? एंड व्हाट इज द लाइट हाउस? लाइट हाउस इज अ टावर नियर एट सी कोस्ट. ओके, सी कोस्ट मीन्स कोस्टल एरिया. ओके, समुद्र में जो एरिया होता है, ठीक ना, समुद्री एरिया के बीच में ये लाइट हाउस होता है, ठीक ना, समुद्री तरफ में. which has a powerful flashing lamp for guiding ships or watering and warning them of danger. What it does? Which has a powerful flashing lamp for guiding ships. Okay, ये क्या काम करता है? इसमें सबसे ऊपर इसमें क्या होता है? जैसे टॉर्च होता है ना, टॉर्च तो छोटा होता है, इसके ऊपर इसकी जो लाइट होती है काफ़ी बड़े मात्रा में होती है, ठीक, उसका साइज़ भी बड़ा होता है, उसकी जो लाइटिंग होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा होती है. एंड इट वर्क्स एज अ गाइडर, ओके, फॉर शिप्स और वार्निंग देम ऑफ डेंजर. अगर कोई भी समुद्र की तरफ में लाइट का काम करता है ये, ठीक, जो भी शिप होती हैं, बोट्स होती हैं, उनको डायरेक्शन काम करता है, ठीक, लाइटिंग देता है. और किसी तरह का कोई डेंजर है, कोई प्रॉब्लम है, कोई खतरा है, तो उससे भी इसकी हेल्प से वार्न किया जाता है. इट एमिट्स अ फ्लैशिंग beam of light and acts like a traffic signal on the sea. It works like a traffic signal on the sea. Okay, just like on the road there is a traffic signal which controls the traffic, just like that there is a traffic signal, it works like a traffic signal on the sea. समुद्र में एक तरह से ट्रैफिक सिग्नल काम करता है ये. ओके, डायरेक्शन काम करता है, गाइड करने का काम करता है ये. कौन? लाइट हाउस. Read this poem about the life of a lighthouse keeper. Okay, the caretaker of lighthouse, the controller of lighthouse. Okay, जो लाइट हाउस को कीप करता है, ठीक ना, उसकी देखभाल करता है, ये उसके बारे में, उस पर्सन के बारे में है. Okay, so from here the poem is started. Burning upon some sudden shore across the sea one night, a little reef, the captain said, we saw a shining light. So in class, in this line, here the poet is saying that one night we saw a shining light which was burning upon some hidden or far area across the sea. Okay, यहाँ पे क्या कह रहा है पोएट जो है कि एक दिन हम लोगों ने क्या देखा, रात में, एक रात हम लोगों ने क्या देखा कि कहीं पे दूर
ठीक, काफ़ी काफ़ी दूर पे एक देखा कि वो लाइट मतलब फ्लैश हो रही, चमक रही है, ठीक। और वो कहाँ पे थे, वो जो लाइट कहाँ से मतलब गुजर रही थी, कहाँ से आ रही थी, वो समुद्री एरिया से, अक्रॉस द सी वन नाइट, ठीक। एक रात हम लोगों ने क्या देखा कि समुद्र की तरफ से कोई लाइट शो हो रही है, फ्लैश कर रही है, ठीक। नेक्स्ट, he said there was a lighthouse there where lonely in the sea. Men lived to guard that moving light and trim the lamp for me. Then the poet said that what was the light was? The light was from that lighthouse. Okay, he said that the lighthouse was alone or lonely in that vast or alone area. Okay, in that sea, in that vast or big sea. And for caring of that lighthouse, there was a lighthouse keeper to guard or care for the lighthouse and its moving light. Okay? फिर पोएट ने क्या कहा कि जो लाइट आ रही थी ना फर्स्ट पैरा में, कि एक रात मैंने देखा कि कहीं से फ्लैश हो रही है लाइट समुद्र की तरफ से, तो वो लाइट किसकी थी, वो लाइट हाउस की थी, जो कि पूरे इतने बड़े समुद्र बहुत बड़ा होता है ना, उस पूरे उतने बड़े समुद्र में अकेला था, है ना, लोनली इन द सी, उतने बड़े समुद्र में केवल एक लाइट हाउस था, ठीक, उतने बड़े जगह पे अकेला, अलोन, ठीक। एंड मैन लिव टू गार्ड दैट मूविंग लाइट, और उस लाइट को गार्ड करने के लिए, मूव करने के लिए, ठीक, वहाँ पे एक गार्ड होता है, ठीक ना, कीपर होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको लाइट हाउस कीपर। ओके, जो कि लाइट हाउस की जो लाइट है उसको डायरेक्शन करना, मूव करना, कंट्रोल करना, ये सब काम कौन करता है, लाइट हाउस कीपर। नेक्स्ट इज फॉर मी, फॉर हिम, फॉर एवरी शिप दैट पासिस बाय दैट वे, आई थॉट इट मस्ट बी स्ट्रेंज एंड क्वाइट टू बी देयर एवरी डे। इट मीन्स द लाइट of the lighthouse is for everyone. Okay, is for me also, for him also, for every ship, for every object which is in the sea. Okay, the lighthouse helps everyone, whoever passes that way, if it is a ship or a person. And then the poet says that it is a very strange, full or quite full day or work, because there is no one to talk or share our feelings, so it is a very strange full work. Okay, यहाँ पे पोएट ने क्या कहा कि जो लाइट है लाइट हाउस की, वो सबके लिए है, उस सी में, उस इतने बड़े सी में जो भी गुजरता है, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो शिप हो, सबके लिए वो लाइट अपने हेल्प करता है, ठीक ना, वो लाइट सबके लिए है। और समुद्र कितना बड़ा होता है ना, वहाँ पे कोई नहीं ना, हम लोग जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग को क्या चाहिए, इंसान चाहिए बात करने के लिए, ठीक, हर तरह की चीज़ें हम लोग को चाहिए ना, क्या हम लोग अकेले किसी भी एरिया जो एकदम अलोन हो, ठीक ना, टोटल डे, तो क्या हम लोग के लिए पॉसिबल है या इजी है वहाँ पे सरवाइव करना, नहीं ना। तो इसी तरीके से यहाँ बता रहे हैं पोएट कि उस एरिया, उस इतने बड़े समुद्र में कोई नहीं ना, बस एक लाइट हाउस है, उसका कीपर है बस। तो क्या है, किसी के लिए भी सरवाइव करना कितना मुश्किल है, बहुत ही स्ट्रेंजफुल वर्क है ये, बहुत ही अजीब है, ठीक, ये आसान नहीं है। नेक्स्ट इज दे हैव नो शॉप्स, नो फील्ड्स, नो स्ट्रीट्स, नो विस्परिंग साउंड ऑफ ट्रीज, बट ऑलवेज साउटिंग ऑफ देयर फीट द ग्रेट वॉइस ऑफ द सीज। देन द पोएट सेड दैट इन द मिड ऑफ द सी देयर इज नो शॉप, no fields, no street, no voice of trees or any movement. What is this? Only loneliness. Okay, there is only one sound of seas or seas, shore or water, or different type of ships or fleet. Okay, यहाँ पे जो पॉइंट है क्या कहा उन्होंने कि उतना बड़ा समुद्र है, एकदम अकेले, ना वहाँ पे किसी तरह की शॉप देखने को मिलती है, ना कोई फील्ड है खेलने के लिए, टहलने के लिए, ना कोई स्ट्रीट है, ना रोड है, ना क्या है जो नेचर की चीज़ें होती हैं ना, विस्परिंग साउंड ऑफ ट्रीज। अब क्या समुद्र में आपको ट्री देखने को मिलता है, नहीं ना, तो किस तरह के ट्रीज नहीं, कोई फ्लावर्स नहीं, मतलब नथिंग, टोटली अ बेयर फील्ड। ओके, ओनली वाटर एंड शिप एंड डिफरेंट टाइप ऑफ बोट्स ओनली। ओके, सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट और रेयर जॉब। ओके, और क्या वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, बस अलग अलग तरह की जो शिप होती हैं उनकी आवाज़ें।
ठीक, और कुछ नहीं, नथिंग. नेक्स्ट थिंग इज, and when we sleep at night they wake, and over every wave they send that straight strong arm of light stretched like a rope of sail. Okay, it means, then the poet says that when we take a calm sleep at night at our home or house, the lighthouse keeper wake. He can't sleep just for us. Okay, like the waves of the sea, he always wake up. The lighthouse lights helps or send its hand for helping whatever is present in the sea, for ship or human being, like a rope in that alone and vast area or vast sea. Okay, यहाँ पे जो पोएट उन्होंने क्या कहा कि जब हम लोग आराम से घर में सोते हैं तो ये जो लाइट हाउस कीपर हैं वो जगे रहते हैं. क्यों? जिससे उस समुद्र में जो भी आ रहा है, ठीक ना, जो भी शिप है या जो भी पर्सन है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं तो उनको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो. वो कभी भी सोते नहीं हैं, ठीक ना. और क्या है, वो लोग हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं. जैसे मान लो कोई किसी प्रॉब्लम में है तो रस्सी फेंक के उसको हेल्प किया जाता है ना, तो उनकी जो लाइट है, लाइट हाउस की जो लाइट है, वो समझता जो उसकी रोशनी बढ़ती है ना, तो लगता है कोई रस्सी फैलाए खड़ा है कि मतलब आपको बचाने के लिए, आपको सेव करने के लिए. सो क्लास हियर दिस पोएम is totally completed. Hope you all enjoyed and understood the importance of these rare duties or these person that done their duties just for our safety. Okay, so class, here poem is completed, so it's enough for the day. Thank you.